Hello everyone, I Somesh Sharma going to discuss the group theory of discrete structure and logic design of second year branch. I am here going to discuss about group theory. Students, group theory is one of the most important fundamental concept of modern algebra. Groups are naturally in various groups can be arise normally in various mathematical situations, and we have found wide applications in physical science and biological science particularly. In the study of crystal structure, configuration, molecules and structure of human genes. The structure of a group is one of the simplest mathematical structure. Here, groups may be considered as the starting point of the study of various algebraic structure. So, in this video lecture, we shall be define groups and study some basic properties of the group. So, we start with the groups. So, before going into the depth of the group, we need to understand about the algebraic structure and what is algebraic structure, and before learning of it, we need to understand the closure property and some more properties we will going to discuss it. So, here I am going to drawing a diagram, so you maybe better understand about it. Fine. So, this diagram will tell us about the properties which we are going to learn and how we can easily understand it basically. So, what I am writing here, you just see it and try to understand what is the mean for this diagram. Okay. So, here I need to write closure property. If it is holding closure property, then it would be the closure algebraic structure. If it is associative, then it is semigroup. If it is having identity, then it is monoid. If it is having inverse, then it is group. And if it is having commutative, then it is abelian group. So, I have drawn this diagram, and by this diagram we will try to understand what are the properties and what are the algebraic structure, what is semigroup, what is monoid, what is group, and what is abelian group. If I am talking abelian group, it does not mean it will have only the commutative property. It will include all the properties which has been mentioned over to it. Fine. If I am talking about I am in Delhi, means I am in India. Fine. If I am not in India, I cannot be in Delhi or any places. So, the mean of saying is that if I don't have the closure property, the characteristic closure property or the associative property or the identity property or the inverse property, I cannot be the abelian group. The simplifying of saying is that I need to have all the four properties before becoming the algebraic structure or abelian group. Fine. So, we try to understand the closure property first. So, we can say yes, it is a algebraic structure. What do you mean by the closure property? मान लीजिए G एक नॉन एम्प्टी सेट है,
G क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड कैन G क्रॉस G कैन बी डिफाइंड एज G cross G can be defined as A comma B, where A belongs to G and B belongs to G. If I perform any operation on a set, let's suppose there is a set, natural number का कोई set लिया, इस पे कोई binary operation अगर हम perform करें, let's suppose I say n एक natural number का set है, उस पर हमने कोई बाइनरी ऑपरेशन, आपका कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करें तो जो रिजल्ट हमारा आता है वो सेट से ही आता है, तो हम वो कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट ले रहा हूँ तो मान लीजिए मैंने 2,3 दो नंबर लिए और इस पर एक बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया, सो व्हाट आई गेट 2 + 3 = 5 विच इज 5 विच इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। Then natural number in respect of the plus would be the closure. So it is the closure property. Fine. So अगर मैं इंटीजर्स ले लेता हूँ, z को इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर आर रिप्रेजेंटेड बाय z. So if I say z with respect to plus is closure or not, let's suppose I say 2 + 15, they both are integers and the sum is 17 which is also a integer. Fine. अगर मैं दो नंबर लेता हूं -3 and -5, so if I do add these two numbers I get -8 which is also an integer, so I can say integer is the closure, integer is holding the closure property. Fine. So I write the definition now. For algebraic structure, so algebraic structure, a non-empty set together with one or more than one binary operation is called algebraic structure. Fine. Or we can say if a set with respect to operator, or if a set with respect to operator, star indication the operator, it's not a multiplication operator. Fine. Satisfy closure property, then it is called algebraic structure. Fine. And we have been discussed the closure property. अगर सेट के दो एलिमेंट लें और उनके साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करें और जो एलिमेंट हमें प्रोडक्ट ऑपरेशन के बाद मिले वो भी सेट से ही हो, तो हम कहते हैं कि ये क्लोजर है. फाइन. सो फॉर एग्जांपल हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि हमें पता रहेगा कि ये नंबर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हम होल्ड कर रहे हैं. सो आई ड्रॉ ए टेबल. लेट्स सपोज नेचुरल नंबर प्लस के साथ, ठीक, क्या नेचुरल नंबर माइनस के साथ,
फाइन। नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ, नेचुरल नंबर डिवीजन के साथ, रियल नंबर इंटीजर्स प्लस के साथ, इंटीजर माइनस के साथ, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के साथ और इंटीजर डिवीजन के साथ। ठीक है। लाइकवाइज रियल नंबर का हम ले लेते हैं एग्जांपल, रियल नंबर प्लस के साथ, रियल नंबर माइनस के साथ, एंड रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ, एंड रियल नंबर डिवीजन के साथ। नाउ हियर वी राइट now here we write algebraic structure, then सेमी ग्रुप, उसके बाद हमने लिखा मोनोइड, और उसके बाद हम लिखेंगे ग्रुप, और उसके बाद हम लिखेंगे अबेलियन ग्रुप। नाउ वी चेक set on some operations, so we can define whether they are algebraic structure, semi-group, monoid or not. If any of the properties being failed, then we cannot check for the other things. Fine. Let's suppose natural number plus के साथ क्या algebraic structure बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, we see it. We have seen it. Let's suppose 2 plus 3 equals to 5. नेचुरल नंबर का सेट है और algebraic structure बनाता है. फाइन, क्योंकि क्लोजर है. 5 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, और ऑपरेशन हमारा क्या है, प्लस का. जब ऑपरेशन प्लस का है तो हमने 2 वैल्यूज ली और आइडेंटिफाई किया कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी हमें नेचुरल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है. अगर हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है. अब बात करते हैं नेचुरल नंबर माइनस के साथ क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. लेट सपोज आई टेक 2 नेचुरल नंबर माइनस के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये हम चेक कर लेते हैं. लेट सपोज 2 minus 3, it gives us -1, which is not a natural number. Fine. So here algebraic natural number माइनस के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इसलिए ये नेचुरल नंबर माइनस के साथ algebraic स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं. algebraic स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जब हमने 2 नंबर लिए और उनके साथ माइनस ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें माइनस वैल्यू मिली, जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है. इसलिए नेचुरल नंबर माइनस के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है. क्या नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं? 2 into 3 which is 6, 5 into 4 which is 20. yes, it is नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. क्या नेचुरल नंबर डिवीजन के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं? 2 divided by 3 is some real numbers, so it is not algebraic structure with respect to the operation division on natural number, so it is not a algebraic structure. क्या integers plus के साथ algebraic structure है? Let's see. क्या इंटीजर प्लस के साथ, लेट सपोज आई टेक -2 plus 3 which is 1, it's an integer. If I write -2 plus -3 which is -5, it is also an integer, because integer starts from -infinity to +infinity. So the whatever value we take will fall under this category. Okay, so integer plus के साथ क्या बनाते हैं,
algebraic structure बनाते हैं because it holds the closure property and as I told you closure property अगर हम सेट के दो वैल्यूज लें और उनके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें और वो वैल्यू जो आए हमारे पास वो भी सेट से आए तो हम उसको क्या कहते हैं, क्लोजर कहते हैं। क्या इंटीजर माइनस के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं? यस, माइनस के साथ -3 -2 which is -3 + 2 which is -1, it is also an integer value. Fine. इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के साथ बनाएंगे? यस बनाएंगे। इंटीजर डिवीजन के साथ बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 divided by 2 which is what? 1.5 which is real number which is not an integer. So here मल्टीप्लिकेशन के साथ इंटीजर फेल हो गए और वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बन पाए। क्या रियल नंबर प्लस के साथ बनाएंगे? यस, रियल नंबर प्लस के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। क्या रियल नंबर माइनस के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं? यस इट इज, यू कैन चेक इट योरसेल्फ। आप चेक कर सकते हैं क्या रियल नंबर माइनस के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं या नहीं। मल्टीप्लिकेशन के साथ रियल नंबर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं? यस इट इज। क्या रियल नंबर डिवीजन के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं? नो, इट फेल्स, क्योंकि 0 इशू करेगा। इसमें हम कुछ और वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं, लाइक इवन नंबर प्लस के साथ और इवन नंबर माइनस के साथ, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के साथ। इवन नंबर प्लस के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होंगे। दो इवन नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको इवन नंबर ही मिलने वाला है, तो इवन नंबर प्लस के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा। इवन नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, नाउ हियर वी लर्न अबाउट द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, what it is. I have discussed about the closure property. We discussed about the closure property. So closure property is being cleared, I suppose. अब हम बात करते हैं सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप होने के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एसोसिएटिव हमारा होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो आई राइट इट समवेयर, associative property what the mean of associative property? A set A with respect to operator is said to satisfy associative property for all A comma B belongs to A operation B operation C equals to A operation B operation C. It is the associative property. Fine. हमने सेट से 3 वैल्यू ली, उनके साथ कुछ ऑपरेशंस किया और अगर वो दोनों वैल्यू सेम आती हैं तो उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर हम क्लोजर हैं और हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहे हैं तो वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। बात समझ में आती है? वी आर सेइंग इफ वी आर क्लोजर देन वी विल गो फॉर एसोसिएटिव, इफ वी आर नॉट क्लोजर वी कैन नॉट गो फॉर एसोसिएटिव। फाइन, देखिएगा, तो जहां पे हमें क्रॉस मिल गया उस लाइन को हम स्किप कर दें, हेयर हेयर, क्योंकि जब हम क्लोजर ही नहीं हैं तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे होल्ड कर सकते हैं? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है तो हम एसोसिएटिव चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम क्लोजर फेल हो गए और हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बन पाए तो हम सेमी ग्रुप कैसे बनेंगे? इन माय प्रीवियस डिस्कशन आई डिस्कस्ड इफ आई एम इन दिल्ली मीन्स आई एम इन इंडिया, इफ आई एम नॉट इन इंडिया हाउ कैन आई बी इन दिल्ली?
अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा हूं तो मैं एसोसिएटिव भी नहीं हो सकता। अगर मैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं हूं तो मैं सेमी ग्रुप भी नहीं बन सकता। तो सेमी ग्रुप बनने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्लोजर चाहिए और एसोसिएटिव चाहिए। इफ आई एम नॉट क्लोजर so how can I be associative? Fine. So now we see see, I was discussing about the associative property and in associative property we says कि अगर हम सेट के किन्हीं 3 एलिमेंट्स को लें और उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करें इस तरीके से और वो सेम आए तो वो एसोसिएटिव है। तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर माइनस के साथ क्लोजर नहीं थे तो हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बना पाए। जब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है तो सेमी ग्रुप के लिए भी हम आगे नहीं जाएंगे। तो इट मीन्स जहां पे आपको फर्स्ट क्रॉस मिल गया उसके आगे आप क्रॉस पुल कर लें। अब उन प्रॉपर्टीज को आपको चेक करने की, उन सेट को आप चेक ना करें जिससे कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। फाइन। अब हम बात कर रहे थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, क्या नेचुरल नंबर प्लस के साथ एसोसिएटिव हैं? फॉर एग्जाम्पल आई टेक 2 3 1 2 3 under the operation 1 plus 2 plus 3 equal to 1 plus 2 plus 3 is it same? 3 plus 3 equals to 1 plus 5 6 equals to 6 यानी कि प्लस के साथ नेचुरल नंबर सेमी ग्रुप बनाते हैं। फाइन। प्लस के साथ नेचुरल नंबर सेमी ग्रुप बनाते हैं। क्या नेचुरल नंबर मल्टीप्लीकेशन के साथ भी सेमी ग्रुप बनाते हैं? 1 into 2 into 3 equal to 1 into 2 into 3. 2 into 3 equal to 1 into 6 which is 6 equals to 6 यानी कि नेचुरल नंबर मल्टीप्लीकेशन के साथ एसोसिएटिव हैं इसलिए ये सेमी ग्रुप बनाते हैं। इज दिस क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की। हमने बात कर ली, डिवाइजन हमें चेक नहीं करना क्योंकि ये क्लोजर नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं हम चेक करेंगे। क्या इंटीजर्स प्लस के साथ एसोसिएटिव हैं? वी कैन सी हियर इट इज इजीली वी कैन से यस दे आर एसोसिएटिव। सो इंटीजर प्लस के साथ क्या है? सेमी ग्रुप है। क्या इंटीजर्स माइनस के साथ सेमी ग्रुप बन पाएंगे? लेट मी चेक। -1 प्लस -2 प्लस -3 इक्वल्स टू -1 प्लस -2 प्लस -3। ठीक है। -1 प्लस -2 बिकम्स -3 प्लस -3 या आप कोई और भी वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है। क्या इंटीजर्स माइनस के साथ सेमी ग्रुप बनाते हैं? नहीं। we can take some other values like I take 2 4 and 5 -2 -4 and -5 then we find it is associative or not. For example I take -2, इसको हम हटा देते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स माइनस के साथ क्या सेमी ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ऑपरेशन हमारा कौन सा होगा? माइनस का होगा। हमने तीन इंटीजर्स वैल्यू ले ली 2 4 and 5। फाइन। ऑपरेशन हमारा क्या है? माइनस का है। 2 - 4 - 5 इक्वल्स टू 2 - 4 - 5।
Do we get the same? No, they are not same. That is why integers माइनस के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं, इसलिए ये सेमी ग्रुप नहीं बन पाए। क्या इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप बनाते हैं? यस, इट विल बी, ये होगा। क्या रियल नंबर प्लस के साथ सेमी ग्रुप बनाते हैं? यस, इट विल बी। क्या रियल नंबर माइनस के साथ सेमी ग्रुप बनाते हैं? नो। क्या रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप बनाएंगे? यस। क्या इवन नंबर प्लस के साथ सेमी ग्रुप बनाएंगे? यस। मल्टीप्लिकेशन के साथ बनाएंगे? यस बनाएंगे। आप चेक कर सकते हैं इजीली। आप कोई भी 2 या 3 नंबर लें और उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, एंड इफ यू गेट इट इज सेम, देन इट वुड बी द सेमी ग्रुप। नाउ वी फाइंड सम क्रॉसेस हियर, so we pull the red line there so that we cannot check these properties again. Fine. So we have seen 2 properties here, closure property and associative property. क्लोजर, अगर सेट के साथ 2 ऑपरेशन, मतलब सेट की वैल्यूज के साथ अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें और जो रिजल्ट आए वो भी सेट से आए, तो हम उसे क्लोजर कहते हैं। और एसोसिएटिव हमने देखा था, एसोसिएटिव में हमने कहा था कि ए क्रॉस बी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अगर ये 2 वैल्यूज एलएचएस या आरएचएस इक्वल आती हैं, तब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी और वो ग्रुप, वो सेमी ग्रुप होगा। वो सेट क्या बनाएगा? सेमी ग्रुप बनाएगा। फाइन। तो वी हैव फाइंड कि नेचुरल नंबर प्लस के साथ सेमी ग्रुप बनाते हैं, नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ भी सेमी ग्रुप बनाते हैं, इंटीजर प्लस के साथ सेमी ग्रुप बना रहे हैं, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप बना रहे हैं, रियल नंबर प्लस के साथ सेमी ग्रुप बनाते हैं, रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप बनाते हैं। तो वी हैव सीन कि कौन कौन से सेट हमारे सेमी ग्रुप बनाते हैं अंडर द ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फाइन। नाउ वी टॉक अबाउट मोनोइड। मोनोइड के लिए हमें क्या चाहिए? आइडेंटिटी। द सेट मस्ट कंटेन द identity property. Now I write identity property. Identity property क्या कहती है? A set A with respect to operation is said to satisfy identity. A set A with respect to operator is said to satisfy identity property if for all A belongs to A. So there is an element E such that A ऑपरेशन E पे मुझे क्या मिले? A, और E ऑपरेशन A पे मुझे क्या मिले? A मिले। फाइन। सेट A with respect to operator is to satisfy the identity property if A belongs to A, यानी कि आपका सेट एलिमेंट जो है सेट से बिलोंग करना चाहिए, और वहां पे कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट E होना चाहिए जिसमें कि किसी भी सेट के साथ किसी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट करूं तो मुझे क्या मिल जाए? एलिमेंट मिल जाए, या आइडेंटिटी एलिमेंट को सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं तो मुझे क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो मोनोइड की डेफिनेशन क्या है? मोनोइड क्या कहता है? इफ अ सेमी ग्रुप satisfy identity property, fine, then it is called monoid. Fine.
अगर कोई सेट आपका सेमी ग्रुप आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोइड कहते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, हाँ बताएं, दो में ऐसा क्या ऐड करूं जिससे कि मुझे वापस 2 मिल जाए? मीन्स सिंपल, इट इज 0। फाइन। अगर मैं ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का ले लूं, 2 में किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे कि मुझे 2 मिल जाए, विच इज 1। सो वी हैव सीन एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0, एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इट इज 1. Fine. So we can see here, in case of addition it is 0, in case of multiplication it is 1. तो अब हम देखते हैं पीछे, क्या नेचुरल नंबर मोनोइड बन पाएंगे? जी नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाते हैं, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0, तो नेचुरल नंबर मोनोइड नहीं बन पाए। क्या नेचुरल नंबर मल्टीप्लीकेशन के साथ मोनोइड है? जी, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन इज 1, सो इट इज नेचुरल नंबर मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या है? मोनोइड है। क्या रियल नंबर इंटीजर्स एडिशन के साथ आपका मोनोइड बन पाएंगे? क्योंकि ये सेमी ग्रुप है तो ये मोनोइड होंगे। क्या इंटीजर्स मल्टीप्लीकेशन के साथ मोनोइड है? 1 is a integers, so it will be monoid. क्या रियल नंबर प्लस के साथ मोनोइड बन पाएंगे? यस। रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन के साथ मोनोइड बन पाएंगे? यस। इवन नंबर प्लस के साथ क्या है? मोनोइड है। मल्टीप्लीकेशन के साथ भी मोनोइड है, यानी कि ये रेस में बने हुए हैं, एंड वी कैन सी दे ऑल हैव द identity element. So I repeat this identity element property. A set A with respect to the operation is said to satisfy the identity property. Identity property क्या है कि अगर सेट के किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो मुझे सेट का एलिमेंट ही मिलना चाहिए, A ही मिलना चाहिए. If I say it is 2 and I operate multiplication and the identity element is 1 and I need to get what? 2. If I take instead of multiplication I take plus 2 plus what? I get 2. Fine. तब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी. और अगर कोई सेमी ग्रुप आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हमने उसको क्या कहा है? मोनोइड कहा है. ठीक है, तो एक सेट मोनोइड कब बनेगा? जब कोई सेमी ग्रुप आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. और सेमी ग्रुप कब होगा? जब वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा. और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कब होगा? जब वो क्लोजर होगा. सो इट इज वेरी इजी टू से इफ आई एम क्लोजर देन आई एम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इफ आई एम एसोसिएटिव देन आई एम द सेमी ग्रुप, इफ आई एम होल्डिंग द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देन आई कैन से आई एम मोनोइड. Okay students, so I stop my things here. I will continue with other two properties and discuss more about it, and we'll do some question on this. Thank you.